Varsha, and Healing Hand celebrates a World Physiotherapist Day with great physios, experiences and their advices. As we know, we are celebrating World Physiotherapist Day on 8th September. And it is a great opportunity टू क्रिएट द अवेयरनेस एंड फिजियोथेरेपी ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि पेशेंट को मोबाइल और इंडिपेंडेंट बनाता है. एंड ऑलवेज रिमेंबर देर इज़ नो मेडिसिन टू इम्प्रूव और गेन रेंज ऑफ मोशन, मसल स्ट्रेंथ एंड पावर, कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, गेट, बैलेंस एंड फिटनेस ऑल्सो. इट इज़ ओनली फिजियोथेरेपी वर्क and I am always try my best for our profession and my work is my passion. Again, wish you a very happy World Physiotherapist Day. Close to heart, physiotherapy colleagues and physiotherapy students, wish you a very happy World Physiotherapy Day. We are all proud physiotherapists of the world, doing excellent service to the society at large. And I will request all of you to take the place today to do more further excels here and excellent work with great commitment to society at large. And yes, we are all proud physios, and once again happy World Physiotherapy Day. Hello everybody, wish you all a very happy World Physiotherapy Day. This year the theme has been COVID-19 and rehabilitation. Yes, physiotherapy is the integral part in treating the COVID-19 patient, and which has been established through the researches and the practice done during this time. This pandemic has also taught us to build our immunity, and physiotherapy plays an important role in building our immunity. To build up the immunity, proper consultation of physiotherapists to start with the exercises to develop the strength, endurance of the muscle, as well as to maintain the property of the muscle, the stretching exercises should be done. We should start the exercises, light exercises, with walking, making in our routine life. Yes, walking can be started with 10 minutes of duration, slowly and gradually up to 30 to 45 minutes for 5 days in a week. This will also help us to boost our immunity. Be safe, be healthy. This is the message on this World Physiotherapy Day from myself, Prabhat Ranjan, physiotherapist, Department of Neurology, New Delhi, AIIMS. This is Anjani Kumar, physiotherapist, Chief Physiotherapist, Lotus Group of Hospital for Women and Children, Hyderabad, Telangana, India. Friends, first of all, I would like to wish you happy World Physiotherapy Day. And the theme, I have seen so many webinars are going on. The theme is the post-COVID management rehabilitation. I'm very much happy the physiotherapy is a front line, and definitely I want to share that I myself I infected with the COVID with entire family, and very well we managed this. And rehabilitation, post-COVID rehabilitation also we have done, means strengthening of the muscle and strengthening of the lungs muscle and other things. Friends, on this juncture, there is no word to say the thanks to my friends and family who have supported me at the time of when I was suffering with when we were suffering with the COVID infection. So anyway, my friends, I like to wish you very happy World Physiotherapy Day to all my physio friends and students. Thank you very much.
Hello everyone, myself Dr. Himandri Kapil and I am a neurophysiotherapist in Indrapuram, Ghaziabad. Wishing you a very happy World Physiotherapy Day to my seniors, colleagues and my lovely juniors. The day marks the unity and solidarity of the global physiotherapy community. We all are proud physios. And once again, happy World Physiotherapy Day. Stay fit, stay healthy. Thank you. मेरा बहुत बहुत नमस्कार मेरे सभी आदरणीय मेरे साथी संघ और मेरे सारे जूनियर्स को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है और रोज़ मैं भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में। उम्मीद करती हूँ कि हम सब साथ मिलकर एकजुट होकर बहुत अच्छा कर सकें और हमारे फिजियोथेरेपी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। यहाँ पर मैं दो मुख्य विषयों में बात करना चाहूँगी। सबसे पहला कि हम सब जानते हैं कि हमारा विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, जो कि हम 8 सितंबर को मनाते हैं, जिसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मैं चाहती हूँ कि इसकी अवेयरनेस सभी में इतनी ज़्यादा हो कि लोग जानते हो कि हाँ, आज कुछ फेस्टिवल है। जैसे दिवाली होली मनाते हैं, वैसे लोग जाने कि आज फेस्टिवल है, आज फिजियोथेरेपी डे है। सो आप सब लोग अपना बहुत बहुत अच्छा काम करिए और इस फील्ड को बहुत आगे तक बढ़ाने में सबके साथ एकजुट होकर चलिए। दूसरा, मैं मुख्य विषय में बात करना चाहूँगी कि हम सभी फिजियोस एक बात से परेशान हैं कि हमें एक पैरामेडिकल में क्यों गिना जाता है, जबकि हम भी एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह इतने सालों तक पढ़ाई करते हैं, इतने सालों तक अपनी चीज़ें, अपना समय देते हैं। लाइब्रेरी में हम भी उनकी तरह घंटों टाइम देते हैं, कैडेवर के साथ घंटों टाइम बिताते हैं, घंटों बोनी स्केलेटल के साथ टाइम बिताते हैं। हम भी सब कुछ करते हैं और इसके साथ साथ हमारे सब्जेक्ट उनके सब्जेक्ट्स में से कहीं ज़्यादा होते हैं, जिनका आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट बहुत हैं, सेकेंड ईयर में बहुत है, थर्ड ईयर में बहुत है, फाइनल ईयर में बहुत सब्जेक्ट हैं। जबकि MBBS वगैरह में देखा जाए तो सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि वो लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करके स्पेसिफिक नॉलेज देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा ग्रास्प कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कुछ चेंजेस करने चाहिए हमारे सिलेबस में जो चला आ रहा है। दूसरा, मैं कहना चाहूँगी कि हमको एकजुट होकर सबसे पहले ये चीज़ ख़त्म करनी होगी कि हम एक पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नहीं, हम एक मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और ये सबको मालूम होना चाहिए। तीसरी बात कि हम में से जो भी बच्चा 100, 200, 300 रुपये में जाके होम विजिट करता है वो बंद करे। आप सभी लोग जान के रखें कि फिजियोथेरेपी की भी इम्पोर्टेंस और फिजियोथेरेपी भी लोगों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण लोगों के लिए एक मेडिकल साइंस है। इसीलिए जब भी आप किसी मेडिकल वाले इंसान को देखोगे तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाओगे, आपका 2000-3000 का पर्चा काट देगा वो। मैं यहाँ पैसे से बात नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि आप जो 1 घंटा, अपना आधा घंटा, अपने 1.5 घंटे, जितना समय आप मरीज को देते हो, क्या उस समय की आपको एक संपूर्ण मात्रा में अमाउंट मिलता है, उतना पे मिलता है? क्यों आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये प्रैक्टिस करो? नहीं करनी आपको प्रैक्टिस। आपके मिनिमम चार्जेस रखो, जितने भी आपके एरिया के हिसाब से आप मेंशन कर सकते हो। एटलीस्ट 500-600 रुपये से कम की विजिट्स तो अलाउ ही मत करो। कोई फिजियो नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए, हमें नहीं करना। हम बैठेंगे ना, अगर मैं भी बैठी हूँ, मेरे जैसे 20 फिजियोस अगर इस एरिया में हो और वो सब बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? एक समय ऐसा होगा कि हमारा चार्जेस फिक्स हो जाएगा कि ये यहाँ पे 600 रुपये विजिट ही लगेगा। केसेस के अकॉर्डिंग चार्जेस लेना शुरू करिए आप लोग, ताकि लोग जाने कि फिजियोस कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं 100 रुपये 200 रुपये में आके घर में मालिश करके चले जाते हैं। एंड प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होके जाइए, प्रॉपर तरीके से अपनी प्रैक्टिस करिए, हर एक चीज़ को स्पेसिफाइड डायग्नोस करिए और उसके साथ प्रैक्टिस करिए। चौथी एक मुख्य बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ में डिप्लोमा एक बहुत बड़ा पार्ट बनता जा रहा है। सो मैं नहीं कहती कि डिप्लोमा के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, डिप्लोमा के बच्चे ही बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर हम फिजियोथेरेपी को एक मेडिकल कोर्स की तरह जानते हैं तो उसके लिए डिप्लोमा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये डिप्लोमा जैसा, क्या आपने MBBS के लिए कोई देखा है?
कि कोई डिप्लोमा चलता हो? क्या आपने BDS के लिए देखा है कि कोई डिप्लोमा इन BDS चलता हो डेंटल में? देखा आपने नहीं ना। तो क्यों हम फिजियोथेरेपी की रेपुटेशन गिरा रहे हैं? सबसे पहले हमको एकजुट होकर बस 2 चीज़ों पे काम करना है। पहली चीज़ कि हमें डिप्लोमा को सपोर्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि हमको सस्ते दामों में प्रैक्टिस नहीं करनी है। तीसरी चीज़, हमें एक वेल ड्रेस्ड होके जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब तक आपकी पूरी प्रैक्टिस ना हो जाए, आप प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप छोटे से पैसे कमाने के लिए आप मत जाइए मार्केट में विज़िट लेने। इस बात को आप लोग समझिए। जब तक आपका 4th ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक आप इंटर्नशिप में सब कुछ अच्छे से सीख नहीं लेते हो, उसके पहले कोई भी अलाउ ना करे कि कोई भी विज़िट पे जाए। ये आपको खुद से निर्णय लेना होगा। ये किसी के भी प्रेशर से आके कभी कोई नहीं सुधरता है। आप लोग समझने की कोशिश करिए कि फिजियोथेरेपी को हमें उजागर करना है। और हमारे कई सारे आदरणीय अध्यापक, कई सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत से फिजियो को इतना नाम दिया है, इतना रोशन किया है। तो हमें इसको और भी ज़्यादा रोशन करना है। थैंक यू। एंड आप सभी को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। IAP ने जो डिबेट कंपटीशन, जो पोस्टर कॉम्पिटिशन्स, जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन, ये सब कुछ जो हम करे हैं, हम लोग ने कॉम्पिटिशन जो रखे हैं, जो इस बार ऑनलाइन मीडिया के थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि कोविड के चलते हम लोग आपस में मिल नहीं सकते, इसलिए हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। सो प्लीज़ सभी लोग उसमें अच्छे से हिस्सा लें और बहुत अच्छा करें एज अ फिजियो होके। थैंक यू सो मच।